Hello everyone, welcome back to my channel and today we are going to discuss about something more important. लास्ट वीडियो में हमने ऑफ ट्रुथ बाय फ्रांसिस बेकन की लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन देखी थी, लेकिन इस वीडियो में आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दूंगी. तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट गेट स्टार्टेड विद द समरी ऑफ ट्रुथ. So Pilate, the ancient Rome governor, he was not much interested in knowing the meaning of truth. He seemed to have a spectacle frame of mind. There are certainly people who frequently change their opinions. They consider it a sign of mental slavery to have a fixed belief. They advocate free will in thought as well as in action. In ancient Greece, there was a school of philosopher called the Skeptics. The discovery of truth. The discovery of truth involves a lot of time and labor. Besides, when truth has been discovered, it acts as a kind of restraint upon the minds of men, because men cannot then change their belief according to their whims. Lies are in favor not because of either of these two causes. It seems that human beings are somehow or other attracted with lie. Truth is like the clear daylight in which the shows and the spectacles presented on the stage of a theater are seen for what they are, while lies are like candle lights in which the same show and the spectacle appear to be far more attractive. Truth gives greater pleasure when a lie has been added to it. An early writer of the church described poetry as the wine of the devil, but poetry tells lies which are received by the mind and then forgotten. Such lies do not settle down in the mind, but much harm is done by those lies that sink into the mind of and settle down there. Only those who understand truth realize the value of truth. Truth is the supreme good for human beings. The inquiry of truth may be described as the wooing of it. The knowledge of truth may be described as the presence of it, and the belief of the truth may be described as the enjoying of it. The first thing that God created was light, and the final thing that He created was the rational faculty which He bestowed upon man. Having completed His work of creation, God has ever since been illuminating the minds of human beings and with His divine spirit. Truth is important not only in theological way or philosophical faith, but also in the sphere of ordinary life. Even those who do not practice truth knows that honest and straightforward dealing shows the dignity and honorable quality of a man. So this is all about the summary, and now I am going to translate in Hindi. So the summary in Hindi looks like that कि Pilate is a Roman governor and he asked, उसने ये क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज़ ट्रुथ, पर उसने अभी उसके जो क्वेश्चन जो उसने पूछा था उसका आंसर जानने की इतनी कोशिश नहीं की, तो वो वहाँ पे रुका भी नहीं उसका आंसर जानने के लिए, वो चला गया. उसका एक मतलब स्केप्टिकल फ्रेम ऑफ माइंड था कि अगर उसको आंसर मिल गया और वो किसी एक फिक्स बिलीफ पे आ गया तो वो अपने जो है बिलीव्स को चेंज नहीं कर पाएगा, फ्रीली वो थिंक नहीं कर पाएगा. इसलिए लोग जो है उस ट्रुथ को फाइंड आउट नहीं करते हैं, तो वो अपने ओपिनियंस चेंज करते रहते हैं और उन्हें लगता है कि अगर वो एक फ़िक्स बिलीफ पे आ गए तो एक मेंटल स्लेवरी बन जाएगी, बॉन्डेज आ जाएगा एक उनके ऊपर. फिर उसके बाद में वो बताते हैं कि एंशियंट ग्रीस के कुछ फ़िलासफ़र्स थे जिनके स्कूल्स को स्केप्टिक्स बोलते थे. उन्होंने काफ़ी कुछ इस पे कहा है, लेकिन आज के जो लोग हैं उन्होंने उन्हीं बातों के ऊपर कहा है, पर कुछ भी उन्होंने अलग नहीं कहा है. वो सेम अपनी एंशियंट्स की बात को फॉलो करते हुए जा रहे हैं, उन्होंने कुछ भी नया नहीं ढूंढा है. फिर वो बोलते हैं कि ऐसा नहीं है कि ट्रुथ की डिस्कवरी के लिए बहुत सारा टाइम लगता है, बहुत सारी मेहनत लगती है. लोग उसे इसलिए नहीं ढूंढते क्योंकि अगर एक बार उन्होंने उसको ढूंढ लिया तो वो अपने बिलीव्स को चेंज नहीं कर पाएंगे, अपने विश्वास को चेंज नहीं कर पाएंगे अपनी इच्छा अनुसार, अपनी सहूलियत के हिसाब से. लाइज जो झूठ है वो हमेशा उनके फेवर में रहता है. वो कभी भी कुछ भी किसी भी चीज़ में ऐड करके एक छोटे टर्म के लिए वो एक फेवर पा सकते हैं लाई से. और लाई मतलब दूर से ही ह्यूमन को जो है अट्रैक्ट करता है, तो ह्यूमंस बेसिकली ऑलमोस्ट वो लाइज पे काफ़ी ज़्यादा जो है डिपेंड होते हैं, आश्रय उनका होता है लाई पे.
और अब यहाँ पे जो राइटर है उन्होंने कंपैरिजन ड्रॉ किया है, ट्रुथ को उन्होंने कंपेयर किया है दिन की रोशनी से, कि ट्रुथ एक दिन की रोशनी की तरह है जो हमें बिल्कुल साफ साफ दिखाता है जो भी चीज़ हुई है, उसके अंदर कुछ भी ऐड नहीं होता। दूसरी तरफ वो झूठ को एक कैंडल लाइट की तरह करते हैं जिसकी शेडो में जो चीज़ जैसी है वैसी नहीं दिखाई देती, उसके अंदर बहुत सारे अट्रैक्शन ऐड किए जाते हैं। सो दिस इज लाई इज़ लाइक दैट। फिर एक अर्लियर एक राइटर थे, उन्होंने चर्च में डिस्क्राइब किया था कि पोइट्री पूरी झूठ है, ये वाइन ऑफ डेविल है, ये डेविल की शराब है, तो इसके अंदर सब कुछ झूठ दिखाया गया है। पर बाद में पोइट कहते हैं कि जिस उस पोइट्री में जो झूठ दिखाया गया उससे किसी का नुकसान नहीं हो रहा है, उसके अंदर जो इमेजिनेशन है वो एक पोइट की थिंकिंग एबिलिटी को दिखा रही है उसके अंदर। इसके बाद में जो है इसके अंदर बात होती है ट्रुथ की वैल्यू करने की। सो ट्रुथ जो है ह्यूमन बींग्स के लिए काफ़ी मतलब एक सुप्रीम गुड, एक बहुत अच्छी चीज़ है। हमें ट्रुथ के बारे में पता होना चाहिए, भले ही इसे ढूंढने में काफ़ी मेहनत लगती है, पर इट विल, ये आपको लॉन्ग टर्म जो है खुशी देगा। उसके बाद में जो है राइटर ये बताते हैं कि गॉड ने भी जो है सबसे पहले लाइट ऑफ सेंस बनाई थी, और उसके बाद में उन्होंने रैशनल मतलब एक तर्क वाली जो शक्ति है वो हमें दी थी, ताकि हम किसी चीज़ पे सेंस आउट कर सकें और उसके ऊपर क्वेश्चन कर सकें। और इसके बाद में अपना वर्क पूरा होने के बाद में गॉड अभी भी जो है हमें जो है गवर्न कर रहा है, हमें जज कर रहा है, हमें जो है आगे जाने के लिए वो जो है अपना रास्ता वो दिखाता रहता है। अब वो जो है राइटर एंड में जाके ये बताते हैं कि ट्रुथ केवल थियोलॉजिकल यानी दार्शनिक और फिलोसॉफिकल फेथ के आधार पर ही नहीं है कि इसका यूज़ वहीं कर सकते हैं, अपन कहीं दर्शन शास्त्र पढ़ रहे हैं या फिर कोई फ़िलासफ़ी पढ़ रहे हैं तो वहीं नहीं है। इसका यूज़ ऑर्डिनरी लाइफ है, अपनी नॉर्मल जो दैनिक जीवन है उसके अंदर काफ़ी यूज़ होता है। और वो बाद में बताते हैं कि एंड में कि जो ट्रुथ की जो है प्रैक्टिस नहीं करते हैं, जो कि प्रैक्टिस नहीं करते उन्हें नहीं पता होता है उसका ट्रुथ का जो एक ऑनेस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड डीलिंग है, कि वो डिग्निटी और ऑनर को मेंटेन करता है। लाए जो झूठ जो है वो शॉर्ट टर्म जो है आपको खुशी देगा, लेकिन ट्रुथ अगर वो फाइंड आउट कर लेते हैं तो वो लॉन्ग टर्म उनकी एक डिग्निटी होती है, ऑनरेबल क्वालिटी है इसकी जो मैन में वो ऐड कर देता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस ऑफ ट्रुथ, जिसके अंदर राइटर ने बात करी है सच के बारे में कि लोग उसे ढूंढते क्यों नहीं है। लोग सच को इसलिए नहीं ढूंढते कि वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है या बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत लेबर लगता है उसके अंदर। लोग उसे इसलिए नहीं ढूंढते क्योंकि अगर उन्होंने उसको ढूंढ लिया तो वो फ्रीली एक्ट नहीं कर पाएंगे, उन्हें अपने बिलीव्स को बदलना पड़ेगा और एक फ़िक्स बिलीफ पे आना पड़ेगा। तो वो अभी अभी तो झूठ के सहारे वो अपने जो है विश्वास उनको बदलते रहते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से, पर अगर उन्होंने ट्रुथ को फाइंड आउट कर लिया तो वो किसी भी एक फ़िक्स बिलीफ पे नहीं आ पाएंगे। सॉरी, तो ट्रुथ को फाइंड आउट कर लेंगे तो वो एक फ़िक्स बिलीफ पे आ जाएंगे, और फिर राइटर क्या बोलता है कि वो उसे जो है मेंटल स्लेवरी मानते हैं, कि अगर उन्हें एक फ़िक्स बिलीफ पे आ गए तो वो उनकी फ्रीडम छिन जाएंगी फ्रीली थिंक करने के लिए या फिर फ्रीली एक्ट करने के लिए। सो वो झूठ का सहारा लेते हैं और झूठ काफ़ी उनको अट्रैक्ट भी करता है। राइटर ने ये भी कहा था कि एक शीशोर पे खड़ा होना कोई बड़ी बात नहीं है, एक महल के जो खिड़की है उससे युद्ध देखना कोई बड़ी बात नहीं है, पर एक ट्रुथ के ग्राउंड पे खड़ा होना काफ़ी मुश्किल काम है। जहाँ पे हवा हमेशा साफ़ चलती रहती है वहाँ पे खड़ा नहीं रहा जा सकता, क्योंकि झूठ जो है आपको अट्रैक्ट करता रहेगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस ऐसे of truth. I hope you like this video, and if you like this then please subscribe to my channel, and thank you for watching the video and have a nice day.